بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وبارک وسلم۔ درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ دودھ کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ دودھ میں کون سی غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں؟ کون سا دودھ استعمال کرنا چاہیے؟ گائیں، بھینس، بکری یا اونٹ کا؟ دودھ کب استعمال کرنا چاہیے؟ دودھ کو کتنی دیر تک ابالنا چاہیے؟ کیا دودھ میں چینی ڈالنی چاہیے کہ نہیں ڈالنی چاہیے؟ ٹھنڈا دودھ پینا چاہیے یا کہ گرم دودھ پینا چاہیے؟ دودھ پینے سے انسان کون سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے؟ دودھ اللہ تعالیٰ کی بہت پیاری نعمت ہے۔ ترجمہ ہے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّا لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً وَإِنَّا لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اور بے شک تمہارے لیے چھپاؤں میں نگاہ حاصل کرنے ہونے کی جگہ ہے۔ ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے، گوبر اور خون کے بیچ میں سے، خالص دودھ، گلے سے سہل اترتا، پینے والوں کے لیے۔ دودھ کے بارے میں دو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرمایا گیا گائے کا دودھ استعمال کرو، یعنی پیا کرو، کیونکہ گائیں ہر درخت سے غذا حاصل کرتی ہے اور اس میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ جب کوئی شخص دودھ پیے تو کہے، یعنی یہ دعا پڑھے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من۔ تو اے اللہ تو اس میں ہمیں برکت دے، ہم کو اور زیادہ نصیب فرما۔ اے اللہ تو اس میں ہمیں برکت دے اور ہمیں اور زیادہ نصیب فرما، یعنی پینا نصیب فرما۔ دودھ کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں جو کھانے اور پانی دونوں کی جگہ کفایت کرے۔ صرف دودھ ہی وہ نعمت ہے جو بھوک اور پیاس دونوں کو دور کرتا ہے، لہٰذا یہ غذا بھی ہے اور پانی بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پینے کی چیزوں میں دودھ بہت پسند تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیے میں یعنی تحفے میں دودھ بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دودھ خود بھی نوش فرمایا اور صحابہ کرام کو بھی پلایا۔ اللہ پاک نے دودھ میں بہت زیادہ نیوٹریشن یعنی غذائیت رکھ دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی بیماریوں کا بھی علاج بھی دودھ میں رکھا ہے۔ دودھ کیلشیم سے بھرپور ہوتا ہے۔ دودھ پینے والوں کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں۔ دودھ پینے والوں کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں۔ دودھ ہڈیوں کی بیماریوں، آنتوں کے کینسر کو روک دینے میں مدد دیتا ہے۔ دودھ ہڈیوں کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ کم عمری میں چہرے وغیرہ پر جو جھریاں پڑ جاتی ہیں، تو روزانہ رات کو نیم گرم دودھ پینے سے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بڑھاپے میں بھی چہرے پر جو جھریاں پڑ جاتی ہیں ان کے لیے بھی ایک علامت ثابت ہوتا ہے۔
चेहरे पर होने वाले दाग धब्बों, कील मुहासों का इसमें इलाज है। इसका इलाज ये है कि सोने से पहले अपने चेहरे या मुतासरा हिस्से पर काबिल बर्दाश्त गर्म दूध से मसाज किया जाए और मालिश की जाए और उसी दूध से चेहरा भी धो लिया जाए। आधे घंटे के बाद पानी से चेहरा धो लिया जाए। पहले दूध से धो लिया जाए, फिर पानी से धो लिया जाए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से फ़ायदा होगा। ताज़ा दूध का झाग चेहरे पर मलने से चेहरे के दाग धब्बे वगैरह दूर होते हैं। दूध में पानी मिलाकर खुश्क खारिश वाली जगह पर लगाई जाए तो थोड़ी देर के बाद दूध से धो डालिए। इंशाअल्लाह इससे भी फ़ायदा होगा। पेशाब में जलन हो तो ताज़ा दूध में पानी मिलाकर इस्तेमाल करें, फ़ायदा होगा और जलन दूर होगी। मसाने की तकलीफ़ वाले लोग गर्म तसीर वाली ग़िज़ाएँ ना खाएं, वो ठंडा दूध पिएं। मसाने की तकलीफ़ वाले लोग दूध में गुड़ मिलाकर पिएं तो फ़ायदा होगा। जिन लोगों की आँखें रोशनी से मुतासिर होती हैं तो आँखों में खालिस दूध का एक एक कतरा डालें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। दूध महदे की तेज़ाबियत ख़त्म करता है। सीने में जलन होती हो तो दिन में 3 मरतबा ठंडा दूध इस्तेमाल करें। दूध अच्छा वो है जो ताज़ा हो, फ्रेश हो और अच्छी ग़िज़ा खाने वाले सेहतमंद जानवरों से हासिल किया गया हो। दूध में चीनी ना डालें। बाज़ लोग दूध में चीनी डालकर पीते हैं। दूध में चीनी मिलाने से इसका कैल्शियम तबाह हो जाता है और चीनी मिला दूध बलगम बनाता है और ये पेट में गैस भी पैदा करता है। दूध में बादाम काट कर डालें और इसको पीने से भी फ़ायदा होता है। कमज़ोर बच्चों को दूध पिलाना बहुत मुफीद है। कमज़ोर बच्चों को दूध पिलाना बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। दूध धोने के फ़ौरन बाद ही पी लिया जाए तो ये फ़ायदेमंद है। अगर ये मुमकिन ना हो तो नीम गर्म दूध पिया जाए। ज़्यादा देर तक दूध को उबालने से इसकी ग़िज़ायत ज़ाया हो जाती है। उसमें ग़िज़ाई अज्जा कम रह जाते हैं। जिन लोगों को दूध हज़म नहीं होता, गैस पैदा करता है, इन्हें चाहिए कि शहद मिला दूध पिएं। शहद मिला हुआ दूध जल्द हज़म होता है और ये इंसान के लिए फ़ायदेमंद भी होता है क्योंकि शहद में शिफा है और दूध में भी शिफा है। दूध हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। इसमें तमाम ग़िज़ाइयत मौजूद होती हैं। इसमें हर विटामिन भी मौजूद होता है। दूध को स्किम मिल्क बनाकर इस्तेमाल करें। दूध को उबाल कर फ्रिज में रख लें। इसके ऊपर जो बलाई बनेगी इसको निकाल लें और फिर दूध को इस्तेमाल करें। इस तरह दूध की ग़िज़ाइयत में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि इसके अंदर से तमाम फ़ैट्स निकल जाएंगी। ये चिकनाई जो इंसान के जिस्म में चर्बी पैदा करते हैं और इंसान को मोटा और फरबा बनाते हैं, उनको निकाल दें तो जिससे दूध चिकनाई के बगैर स्किम मिल्क बन जाएगा। गाय का दूध ग़िज़ाइयत के लिहाज से बहुत बेहतरीन दूध होता है क्योंकि इसके ऊपर से बलाई उतारने की भी ज़रूरत नहीं होती। गाय के दूध में जो बलाई बनती है उसमें चिकनाई नहीं होती। गाय, ऊँटनी और बकरी का दूध, ये तीनों दूध ग़िज़ाइयत के लिहाज से बेहतरीन दूध में शामिल होते हैं। उन तीनों दूधों की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। जिन लोगों को बलगम रहता है उनके लिए बलगम को ख़त्म करने के लिए दूध बेहतरीन चीज़ है। इनफर्टिलिटी के लिए भी ऊँटनी का दूध बेहतर होता है। ये इंसान को स्लिम और ट्रिम करने में मदद देता है। इस सिलसिले में गाय का दूध बहुत अच्छा होता है। खूबसूरती के लिए भी बकरी का दूध बहुत अच्छा होता है। गाय का मक्खन सेहत के लिए बहुत बेहतरीन होता है। मुंह पर लगाने के लिए भी, रंगत को साफ़ करने के लिए, रंग गोरा करने के लिए बकरी का दूध बहुत अच्छा होता है।
हमारे मज़हब इस्लाम में भी गाय के दूध को इस्तेमाल करने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि इसमें शफा होती है। ऊँटनी का दूध धोने के फ़ौरन बाद इस्तेमाल करना चाहिए। ऊँटनी का दूध हड्डियों के लिए और फेफड़ों के लिए बेहतरीन होता है। जिगर के अमराज में भी ऊँटनी का दूध बेहतरीन होता है। ये जो ऊँटनी का दूध है ये फेफड़ों, हड्डियों और जिगर इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। जिन लोगों को हड्डियों की बीमारियां होती हैं या फेफड़ों में कोई मसला होता है, सांस लेने के में कोई मसला होता है, या जिगर के अमराज में मुब्तला हैं, हेपेटाइटिस या कोई और किसी किस्म की तकलीफ़ में मुब्तला है, तो उन्हें चाहिए कि वो ऊँटनी का दूध ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। ऊँटनी के दूध के इस्तेमाल का बेहतर तरीका। ऊँटनी के दूध के इस्तेमाल का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जहाँ ऊँटनी का दूध निकल रहा हो वहाँ ही खड़े होकर इसे पी लिया जाए, तो ये बहुत फ़ायदा देता है। ये ताज़ा दूध होता है। जिगर के तमाम अमराज के लिए, जैसा कि हेपेटाइटिस सी, उसके लिए भी ऊँटनी का दूध बहुत ज़्यादा अक्सीर और फ़ायदेमंद है। ऊँटनी का दूध वो वाहिद दूध है जिसके अंदर कोई चिकनाई नहीं होती। ऊँटनी का दूध वो वाहिद दूध होता है जिसके अंदर कोई भी किसी किस्म की चिकनाई नहीं होती। अल्लाह ताला का कानून है कि जिस दूध के अंदर जितना ज़्यादा जाग होगा उसके अंदर चिकनाइयत कम से कम होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हर शर, हर बीमारी से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और अपने फजल व करम से हमारी ज़िंदगी के तमाम मामलात को खैर व आफियत के साथ, आसानी के साथ दुरुस्त फरमाएँ। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन।